Good morning students, myself Hemant Gupta. In my previous class, we were discussing about different types of force. So basically, force is of two types, contact force and non-contact forces. Under contact forces comes muscular force and frictional force, while under non-contact forces comes gravitational force, magnetic force and electrostatic force. Today we will discuss about all these types of forces in detail one by one. So let's start with contact forces. ये contact force किसको बोलते हैं और इसके लिए दो एग्जाम्पल जो है मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, कैसे contact force कहलाता है. Here the word contact force is clear that when two bodies are in contact with each other, then the force applied by one body upon other body is called contact force. So let's start with contact force. Contact force. To whom do we call this contact force? Such forces which acts on the body when they are in contact with each other. Such forces which acts on the body when they are in contact with each other are called contact forces. So students, here it is clear from the word, the meaning of this word contact. When two bodies are in contact with each other, अगर जब कोई force किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा हो, तब जब वो force को contact में लाना पड़ेगा, तब such forces which acts on the body when they are in contact with each other are called contact forces. For example, muscular force and next one is your frictional force. These two forces are the examples of contact forces. So let us discuss about this muscular force and then we will discuss about this frictional force. So what is this muscular force? To whom do we call muscular force? It is very simple. बहुत आसान है ये. The force exerted by the muscles of our body. वैसा force जो हमारे body के muscles के द्वारा लगाई जाती है, that force is called muscular force. So here you can write the definition for muscular force. It is the force exerted means lagna. It is the force exerted by the muscles of our body. है ना? ये ऐसा फोर्स है जो हमारे बॉडी के मसल्स के द्वारा लगाई जाती है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, when we lift our school bag, then we apply force by the hand of our body. Then what actually we are doing? We are applying force by the muscles of our hand, and for this you have to make contact of your hand with school bag. That's why this muscular force comes under contact force. Here what is said,
when we lift our school bag, then we apply force by the muscles of our body, and for this our hand comes in contact with the bag, that's why muscular force is a contact force. Here you can see it is very clear. When we lift our school bag, then we apply force by the muscles of our body. जब हम स्कूल बैग को लिफ्ट कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी से फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड फॉर दिस आवर हैंड्स कम इन कांटेक्ट विद द बैग, और इसके लिए हमारा हाथ किसके कांटेक्ट में आता है? बैग के कांटेक्ट में आता है। फोर्स लगाने के लिए हमारे हाथ को किसके कांटेक्ट में आना पड़ता है? बैग के कांटेक्ट। दैट्स व्हाई दिस मस्कुलर फोर्स comes under, or we can say it is a contact force. Muscular force is example of contact force. Is this clear? Now come to the second example of this frictional force. To whom do we call? So let us stand first. What is this friction? What is friction? Again, this friction comes under contact force. First, see what is this? Friction. Friction is a force which slows things down or prevent things from moving. ये एक ऐसा फोर्स है जो किसी मोशन को रोकता है, उसके मोशन में अपोज लाता है। फ्रिक्शन is the force which slows things down or prevents things motion. It always opposes means बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट पैदा। It always opposes the motion of the body. So friction is the force which slows things down or prevents things to motion. कैसा फोर्स है जो किसी भी चीज के मोशन में या मोशन में रुकावट लाता है, स्लोज थिंग्स डाउन, स्लो कर देता है उसके मोशन को। ठीक है, इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी के मोशन को हमेशा ये रुकावट पैदा करता है, हमेशा रोकता है, अपोज करता है किसी भी बॉडी के मोशन को। इसको समझने के लिए चलिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी रोल ए बॉल over the horizontal surface, then it rolls for some time.
and then finally it comes to rest. Why do this happen? ऐसा क्यों होता है? अगर हम जब कभी किसी बॉल को, खेलने वाला जो बॉल होता है, अगर मैं उसको अगर रोल करूं ग्राउंड पे, सरफेस पे, तो वो थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है. Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? ये होता है किस फोर्स की वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से. This happens due to this friction. When we roll a ball over a horizontal surface, then it rolls for some time and finally it comes to रेस्ट. जब हम किसी बॉल को किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल करते हैं तो वो कुछ समय तक रोल होता है, लेकिन फाइनली वो रेस्ट अवस्था में आ जाता है. ऐसा क्यों होता है? दिस हैपेंस ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स. दिस इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ ए बॉडी. ये एक ऐसा फोर्स है जो किसी बॉडी के मोशन को अपोज करता है. तो ये बॉल इसलिए रुक गया क्योंकि बॉल पे कैच कर रहा था फ्रिक्शनल फोर्स. Now students, let us try to understand that how this frictional force comes under contact force. So when we roll a ball, जब हम बॉल को रोल कर रहे थे सरफेस पे, तो सरफेस का जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल सरफेस को मैंने फ्लोर मान लिया, तो फ्लोर का जो सरफेस है और बॉल का जो सरफेस है, दोनों आपस में कांटेक्ट में था. ये सपोज एक सरफेस है, इस सरफेस पे जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रोल किया, जब इस ऑब्जेक्ट को रोल किया, तो इस ऑब्जेक्ट का सरफेस और ये इसका सरफेस, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है. आपस में ही कांटेक्ट में है. समझ में आ रहा है? आपस में कांटेक्ट में. तो जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर मोशन कर रहा होता है तो उसे कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस होता है? ये फ्रिक्शनल फोर्स. और ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उस बॉडी के मोशन को क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है, अपोजेस द मोशन, रोकता है. दैट्स व्हाई हियर बॉल कम्स टू रेस्ट पोजीशन. So here we can write this happens due to the friction in between. किसके बीच में फ्रिक्शन एक्ट किया यहाँ पे? In between the ball and the surface over which the ball was rolling. ये किस वजह से हुआ? ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है. किसके बीच फ्रिक्शन हो रहा है? बॉल और सरफेस के बीच. जिस सरफेस पे बॉल रोल कर रहा था, तो उसके दोनों के बीच में क्या एक्ट कर रहा था? फ्रिक्शन. और ये फ्रिक्शन उस बॉल के मोशन को अपोज कर दिया. ओके, सो यू कैन सी हियर क्लियरली, हियर टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, द बॉल एंड द फ्लोर, द सरफेस ऑफ द फ्लोर. The ball and the surface of the floor both are in contact with each other. That's why this frictional force comes under contact force. So these two are the examples of contact forces. Just we have learned that contact force are such forces which act on the body when they are in contact with each other. There are basically two types of contact forces: muscular force and frictional force. These two are the examples of contact forces. Now come to the another type of force, that is non-contact forces. Non-contact forces क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इनका, non-contact forces का.
next type of force is here non-contact. So such forces which acts on body when they are in not contact with the body. ऐसा फोर्स है जो बॉडी में कब एक्ट कर रहा होता है, जब बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं है, देयर इज सेपरेशन है, दोनों बॉडी के बीच में गैप है, डिस्टेंस है, ठीक है, फिर भी फोर्स एक्ट कर रहा है. इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रीवियस फोर्स. पूरा उल्टा है. प्रीवियस फोर्स, पहले वाले फोर्स में हमने क्या बोला था, कॉन्टैक्ट फोर्स में बॉडी को कांटेक्ट में होना जरूरी है तब वो फोर्स एक्ट करता है, लेकिन यहाँ बॉडी के बीच में कांटेक्ट नहीं होता है. देयर इज अ डिस्टेंस, देयर इज अ गैप बिटवीन द टू बॉडीज एंड स्टिल फोर्सेस आर एक्टिंग. फिर भी फोर्स एक्ट कर रहा होता है. सो फर्स्ट, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ दिस नॉन कांटेक्ट फोर्स? सच फोर्सेस which acts on the body when they are not, mind it, when they are not in contact. It is very clear from the given word non-contact. Contact नहीं होता है, दोनों बॉडीज के बीच में कांटेक्ट नहीं था, फिर भी फोर्स एक्ट करता है. Such forces which act on the body when they are not in contact with each other are called non-contact forces. Here, for example, gravitational force, very important. Gravitational force. This force comes under non-contact force. We will discuss. Just हम लोग भी समझेंगे इसके बारे में. Gravitational force. Second one is your magnetic force. And third one is electrostatic force. So these three forces, gravitational force, magnetic force and electrostatic force, these three forces comes under non-contact forces. So let us discuss about first of all gravitational force. सबसे पहले gravitational force डिस्कस करते हैं. Very important, बहुत important है ये force. We all know that we are residing on the surface of the earth. हम लोग अर्थ के सरफेस पे रहते हैं. And there is a force which continuously act, or which are continuously acting on all the bodies residing on the surface of the earth. This is your gravitational force. Gravitational force. This is the force exerted by the earth towards itself. It is the force of attraction. Mind it, ये attraction वाली force है, which is exerted by the earth towards itself on all the objects residing on the surface of the earth. जितने भी सारे objects earth के surface पे हैं, सारे objects पे continuously एक force act कर रहा है towards the downward direction of the earth. The name of that force is gravitational force. We can say that gravitational force is the force of attraction with which earth pulls every object towards itself. Earth सारे object को अपनी ओर खींचता है एक force लगा करके. इस force का नाम है gravitational force. So here we can say that gravitational force is the force with which it is the gravitational force is the force of attraction. First right, it is the force of attraction. Gravitational force is the force of attraction with which the earth
पुल्स, खींचता है अपनी ओर, पुल्स एवरीथिंग, सब कुछ टुवर्ड्स इटसेल्फ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन वाली फोर्स है। कौन लगाती है? अर्थ लगाती है। अर्थ सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींचती है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद व्हिच द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। और वी कैन आल्सो से दैट इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ, व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ। कौन लगाता है? अर्थ लगाता है। किस पे लगाता है? ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स रिसाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ, सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगाता है, जो सारे ऑब्जेक्ट्स अर्थ के सरफेस के ऊपर। दिस फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड इट। अगेन आई एम सेइंग, एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ लगाता है सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। कंटिन्यूअसली ये फोर्स एक्ट कर रहा है, अभी भी एक्ट कर रहा है, हर वक्त कंटिन्यूअसली लगातार ये फोर्स लगती है, सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगती है। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड, टुवर्ड्स द अर्थ ये फोर्स एक्ट करती है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, when we throw a ball in upward direction, then what happens? It goes up, ऊपर जाता है, and slows down, धीरे धीरे उसका मोशन स्लो होने लगता है, and then finally comes to the race towards the earth, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है और नीचे आकर के फिर रेस्ट पोजीशन पे गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, when we throw a ball in upward direction, जब हम ऊपर की दिशा में किसी बॉल को फेंकते हैं, then after some time its motion after some time its motion slows down and finally comes downward, नीचे की तरफ आता है, finally comes downward towards the earth, when we throw a ball in upward direction, then after some time it's throw, कुछ देर के बाद उसका मोशन स्लो होने लगता है and finally comes downward towards the earth, फिर वो नीचे की तरफ आने लगता है और नीचे की तरफ आने लगता है। This happens, ये किस वजह से होता है? Due to this gravitational, ये gravitational force की वजह से ही होता है, क्योंकि ये अट्रैक्शन वाली फोर्स है जो अर्थ लगाती है सारे ऑब्जेक्ट पे, ये बॉल पे भी लगा रही होगी। That's why बॉल्स, जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल कुछ दूर तो जाता है, उसका मोशन धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है और फाइनली इस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो अर्थ की तरफ, अर्थ की ओर नीचे गिरने लगता है। ओके, तो इसका मतलब कोई भी चीज जब गिरता है तो किस डायरेक्शन में गिरता है? Whenever any body falls, then it always falls in downward direction, not in the upward direction. And this downward direction is due to the gravitational force, because this is the force of attraction. ये attraction वाली force है, नीचे की तरफ ही लगती है ये force. It always acts towards the earth in downward direction. Okay? Next, magnetic force. Next one is magnetic force. It is the force, it is very
is the force exerted by the magnet on magnetic substances like iron. Iron क्या है? मैग्नेटिक सब्सटेंस है. तो मैग्नेट के द्वारा लगाया गया फोर्स किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है. So here we can write this magnetic force as it is the force. It is the force exerted by the magnet on the magnetic substances. We have already learned in the previous class about these magnetic substances. To whom do we call the magnetic substance? Like iron, cobalt, nickel, all these are magnetic substances. So it is the force exerted by the magnet on the magnetic substances, like you can say iron. आयरन पे फोर्स लगाता है. कौन लगाता है? मैग्नेट लगाता है. आयरन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक फोर्स लगाता है. तो ये जब फोर्स लगाता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है. जरूरी नहीं कि मैग्नेट पूरा आयरन की तरफ एकदम पूरा कांटेक्ट में आना है. वो एक सर्टेन डिस्टेंस में ही एक्ट करता है. तो हियर वी कैन से दैट मैग्नेट एक्ट्स फ्रॉम ए डिस्टेंस. एक दूरी से ही मैग्नेट फोर्स लगाना चालू कर देता है. इट एक्ट्स फ्रॉम ए डिस्टेंस. हाउ? कैसे वो एक डिस्टेंस से एक्ट करना चालू कर देता है? सो हियर वी विल सी. ए मैग्नेट एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस. कैसे किसी एक सर्टेन डिस्टेंस से ही मैग्नेट एक्ट करने लगता है, एक फोर्स लगाने लगता है? बिकॉज वी ऑल नो दैट around a magnet there is an invisible magnetic field. एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेट के साउंड में क्या होता है? मैग्नेट के साउंड यू ऑल नो दैट मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल से चारों तरफ, मैग्नेट की चारों तरफ एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड होता है. वो मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलता है? नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल की तरफ कंक्रीट करता है. नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ कंक्रीट करता है. मैग्नेटिक फील्ड होता है. उस वही मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है, जो फोर्स इस पे एक्ट करता है मैग्नेटिक सब्सटेंस. जैसे कोई सब्सटेंस उस फील्ड में आता है, देन दैट सब्सटेंस स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द मैग्नेटिक फोर्स. जैसे ही कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस इसके फील्ड में आता है तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस फोर्स एक्सपीरियंस करना चालू कर देता है. फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज दिस इज अ मैग्नेट. थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये क्या है? मैग्नेट है. देन ऑब्वियसली इसके सराउंडिंग में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा. और ये है मैग्नेटिक सब्सटेंस. सपोज ये मैग्नेटिक सब्सटेंस अभी इधर है, तो इस पर अभी कोई इफेक्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि ये फील्ड से बाहर है. लेकिन जैसे ये मैग्नेटिक सब्सटेंस इसके फील्ड के अंदर आएगा, एंटर करेगा इसके फील्ड में, देन इट स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स. तब इसमें फोर्स एक्ट करने लगेगा. ठीक है? इस पे फोर्स देखो, जबकि इन दोनों के बीच में क्या है? देयर इज ए डिस्टेंस, देयर इज ए गैप बिटवीन दिस टू बॉडी. दोनों के बीच में क्या है? गैप है. इन दिस वे मैग्नेट एक्ट्स फ्रॉम ए डिस्टेंस. So a magnet acts from a distance because a magnet have an invisible, नहीं दिखता है वो मैग्नेटिक फील्ड, इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड. एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. A magnet acts from a distance because a magnet have an invisible magnetic field. Which creates magnetic force. And when any
magnetic substance, when any magnetic substance comes in the region of this field, this magnetic field, then it experiences force from a distance. मैग्नेट कैसे डिस्टेंस से एक्ट करता है? When a magnet which has an invisible magnetic field, ये मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है? इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड होता है, which creates magnetic force, जो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फोर्स। और जब कभी कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आता है, then it experiences a force from it, तब उसको एक डिस्टेंस से ही फोर्स एक्सपीरियंस होने लगता है। ओके, नाउ कम टू द last type of non-contact force, that is your electrostatic force. Electrostatic force. Electrostatic force. It is the force exerted by charged particle. किसी भी चार्ज पार्टिकल के द्वारा लगाया गया यह फोर्स होता है किसी दूसरे चार्ज या अनचार्ज पार्टिकल पे। और अगेन यहाँ जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टिकल के बीच में कांटेक्ट हो, देयर मे बी सम डिस्टेंस। ये फोर्स एक डिस्टेंस से ही एक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर नॉन कांटेक्ट। सो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? Electrostatic force is the force exerted by the charged particle या charged body on another charged or uncharged इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि कोई चार्ज बॉडी लगाता है किस पे? किसी दूसरे चार्ज या अनचार्ज बॉडी पे। ध्यान से, जरूरी नहीं है कि दूसरा बॉडी चार्ज ही हो, अगर वो अनचार्ज भी है तो भी कोई चार्ज बॉडी उस बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। या कैसे? बाय अप्लाइंग फोर्स। द नेम ऑफ दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Electrostatic force is the force exerted by the charged body or another charged or uncharged body. For example, when a comb rub on dry hair, जब एक कंघी को हम ड्राई हेयर पे रब करते हैं और उसे स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के नजदीक ले जाते हैं, मैं पूरा कॉन्टैक्ट नहीं ले रहा हूँ, उसके नजदीक ले जाते हैं, तो क्या होता है? दैट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द comb की तरफ अट्रैक्ट लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉम क्या हो गया है? इलेक्ट्रिकली चार्ज। जब हम कॉम को ड्राई हेयर पे रब करते हैं तो ड्राई हेयर में मौजूद कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो जाता है किस पे? कॉम पे। एंड कॉम गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो कॉम क्या हो गया? एक चार्ज बॉडी हो गया। अब वो जो हमने स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर की तरफ जो ले गए कॉम को, तो दैट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर आर अनचार्ज बॉडी। तो जैसे ही कोई चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के नजदीक ले जाते हैं तो क्या करता है? उसे फोर्स लगाता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है,
when we or when a comb rub on a dry hair is brought near bits of paper, छोटा छोटा टुकड़ा पेपर का, bits of paper में छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा, when a comb rub on dry hair is brought near bits of paper, then what happens? Then these bits of paper get attracted towards the comb. जब किसी कंघी को ड्राई हेयर पे रख दिया जाता है और उसे बिट्स ऑफ पेपर के नजदीक लाया जाता है, देन वो बिट्स ऑफ पेपर क्या होता है, कॉम्ब की तरफ आकर्षित होने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है। When a comb rubbed on dry hair is brought near bits of paper, then that bits of paper get attracted towards the comb. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉम्ब कौन सा फोर्स लगा रहा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके ऊपर? बिट्स ऑफ पेपर के। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लगाता है, कॉम्ब क्यों लगाता है? उसके लिए तो उस कॉम्ब को चार्ज होना पड़ेगा। ये इसी कॉम्ब कब चार्ज हो जाता है? जब कॉम्ब को ड्राई हेयर पे रब किया जाता है। See here, this happens because when we rub a comb, then it gets electrically charged। तब वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। कौन चार्ज हो जाता है? कॉम्ब। कैसे चार्ज हो जाता है? तो जब हम ड्राई हेयर पे कॉम्ब को रब करते हैं तो हमारे ड्राई हेयर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स किस में ट्रांसफर हो जाता है? कॉम्ब में। और कॉम्ब क्या होता है? ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। दैट्स व्हाई हियर वी कैन से दैट इट गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज। And as this charged comb is brought near bits of paper, और ये bits of paper क्या है? यहाँ पे अनचार्ज है, ये तो चार्ज नहीं है। bits of paper जैसे ये चार्ज कॉम्ब को हम लोग बिट्स ऑफ पेपर के नजदीक लाते हैं, द कॉम्ब कौन सा फोर्स लगाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction on the bits of paper। bits of paper पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना चाहिए। So again, let us stand। फिर से समझते हैं। When a comb rubbed on a dry hair is brought near bits of paper, then these bits of paper get attracted towards the comb। ये तो यहाँ तक तो क्लियर है। वो अट्रैक्ट होता है, बिट्स ऑफ पेपर कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन वी रब ए कॉम्ब देन इट गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज। जब कॉम्ब को हम लोग रब करते हैं ड्राई हेयर पे तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। एंड एज दिस चार्ज कॉम्ब इज ब्रॉट नियर द बिट्स ऑफ पेपर, देन द कॉम्ब एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द बिट्स ऑफ पेपर। तब कौन सा फोर्स लगाता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। जस्ट हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? द फोर्स exerted by the charge body। यहाँ पे कॉम्ब क्या था? चार्ज बॉडी। और किस पे लगाया उसने फोर्स? किस पे? अनचार्ज बिट्स ऑफ पेपर, अनचार्ज बॉडी पे फोर्स। ओके।
Okay. So that much. So this completes your course. Now in my next class I will discuss a new topic, pressure. Okay. That's it for today. Okay. Thank you. Bye.